بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ شروع میں مجھے میری نند میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پر میں حیران تھی کہ کیسے اتنی معصوم لڑکی کو بد کردار قرار دے کر 3 بار طلاق ہو چکی تھی۔ میری نند بہت خاموش طبیعت اور بالکل معصوم بچوں کی طرح تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آتا تھا۔ میں نے اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانے کا سوچا۔ میری نند کی چوتھی شادی تھی جو میں نے اپنے بھائی سے کروائی تھی۔ میری نند شادی کے بعد 15 ماہ تک حاملہ رہ کر بچہ چنا۔ اس رات طلاق لے کر گھر آ گئی، کہتی شوہر نے بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہوتی، نہ تو اس کے پاس بچہ تھا، نہ ہی اس کی حالت اتنی نازک ہوتی کہ بچہ ہوا ہو، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی۔ میری ساس اب اس کی شادی کرنے سے خوفزدہ ہو گئی تھی، پھر طلاق ہو جائے گی، جبکہ میں یہ راز جاننا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنی ساس کو رضامند کیا وہ میرے بھائی سے شادی کر دیں۔ میرا بھائی بھی اس شادی سے انکاری تھا۔ میں نے اسے منایا، کہا کہ طلاق یافتہ لڑکی کو سہارا دینا بہت بڑا ثواب ہے۔ وہ بہت مشکل سے مانا۔ اس کا کہنا تھا جب اس کی 3 بار طلاق ہوئی، ہر کسی نے اس پر بدکاری کا الزام لگایا تو سچائی ہوگی، لیکن میں نے اپنے بھائی کو اس کی خوبیاں گنوا کر اس کی نند کے ساتھ شادی کروا دی۔ 1 ماہ ہی بعد میری نند حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد جو راز ہمیں معلوم ہوا، روح لرز گئی۔ میرا نام مومنہ ہے، میں 35 سال کی ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر مزدور پیشہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر سے گھر اپنا ہے۔ میری 2 نندیں ہیں اور 2 دیور۔ میرا شوہر بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ بڑی والی نند کی شادی میری پہلی اولاد ہونے کے بعد ہوئی تھی، اور وہ خود 2 بچوں کی ماں تھی اور اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ میرے دونوں دیور کی شادی ہو چکی تھی۔ مجھے اب گھر میں سب چڑھنے لگے، وہ ایک بوجھ لگتی تھی، ہر وقت گمسم رہتی تھی۔ اس کی صحت سوکھے تنکے جیسی ہو چکی تھی۔ میری چھوٹی نند، اس کی پہلی شادی ہمارے پرانے محلے کے ایک لڑکے سے ہوئی تھی جو اسکول ٹیچر تھا۔ میری نند کو پسند کرتا تھا۔ میری نند کا نام فرحین ہے۔ فرحین کی پہلی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کے سسرال والے بھی بہت خوش تھے۔ شادی کے دوسرے روز فرحین یہ ضد لگائے بیٹھ گئی، وہ سسرال نہیں جائے گی، جسے سنتے ہی سب پریشان ہو گئے اور زبردستی اسے سسرال بھیج دیا۔ لیکن اس کے بعد اس کا رویہ عجیب سا ہو گیا۔ شادی کے 1 ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ اس کے سسرال والے بہت خوش تھے۔ فرحین بالکل خاموش، وہ ایک لفظ منہ سے نہ کہتی، صرف بت بنی رہتی۔ شادی سے پہلے بھی وہ ایسی ہی تھی، لیکن اس قدر ابنارمل بہو نہ تھا۔ جبکہ اس کے شوہر کا کہنا تھا وہ قریب بھی نہیں آنے دیتی۔ عموماً حمل کا تو ماہ ہوتا ہے، لیکن اس کا 15 ماہ کا ہوا۔ اس کے دن اپنی امید سے ہونے کا سب کو بتا دیا۔ اس کے 15 ماہ بعد اس کا بچہ ہوا۔ اسے طلاق دے دی۔ میرا شوہر اور دیور لڑنے کے ارادے سے وہاں جانے لگے تو فرحین ان کے پاؤں میں گر گئی، روتے ہوئے چلانے لگی، خدا کے لیے مت جائیں، وہ میرے بچے کو مار دیں گے، پلیز مت جائیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، میں اپنی جان لے لوں گی، میں خود کو ماراؤں گی اگر آپ وہاں گئے تو۔ میرے شوہر ضبط کر کے رہ گئے۔ اس کے بعد فرحین کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میں نے خود اپنی اولاد کے متعلق کچھ نہ کہا، نہ ذکر کیا۔ ہمیں تعجب ہوتا ایسے کیسے اس کی ممتا ٹھنڈی پڑ گئی، پر ہم نے بات پر غور ہی نہ کیا۔ وہ خود بھی ٹھنڈی ہے، احساسات سے آ رہی۔ اس کی دوسری شادی میری بڑی نند کے شوہر کے دوست سے ہوئی۔ اتفاق سے اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن طلاق ہو گئی۔ وہ رات کے سیاہ پہر گھر آئی، چہرے کے تاثرات بالکل بے تاثر تھے۔ اسے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی کیونکہ وہ بد کردار ہے۔ اس بار بھائیوں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میری ساس نے سختی سے انکار کر دیا۔ کوئی کسی قسم کی بات نہ کرے، مزید بدنامی نہیں جھیل سکتے۔ تیسری شادی امی نے کسی دوست کے دور دراز کے گھر کی، جن کے متعلق کوئی معلومات نہ تھی۔ میرے شوہر دیور نے احتجاج کیا، پر ہمیشہ کی طرح میری ساس نے فرحین کے لیے صرف اپنی مرضی کی اور انسان کے ساتھ رخصت کر دیا جس کے لیے سب خلاف تھے۔ وہ لڑکا میرے شوہر کو بری طرح کھٹکا تھا۔ اس بار جو ہوا وہ پہلے سے زیادہ برا تھا۔ شادی کے 3 دن بعد ہی وہ طلاق لے کر گھر آ گئی۔ اس بار سب فرحین کے معاملے میں بے حس بن گئے۔ ہر جگہ میری ساس کو اپنی مرضی کرنی تھی۔ وہ میرے دیور اور شوہر نے فرحین کے سر سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس مسئلے کو جاننا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کی اس سے شادی کروانے کا فیصلہ کیا، میرے شوہر نے انکار کر دیا۔ انہیں سمجھایا، میرا بھائی بہت اچھا انسان ہے،
आपको अम्मी से बात करनी चाहिए, वरना यतीम बहन की बर्बादी और ज़िम्मे शर क्या मुँह दिखाएंगे। अल्लाह को मेरा कहना था। मेरे शौहर के अंदर मरा हुआ एहसास एक बार फिर जाग उठा। अम्मी से जब इस रिश्ते के मुतल्लिक बात की तो उनके चेहरे का रंग फ़ाक हो गया। उन्होंने मना कर दिया, वो फ़रहीन की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन इस बार मेरा शौहर फट पड़ा। अम्मी को वाज़िया कह दिया, आपने फ़रहीन के मामले में हर बार अपनी मर्ज़ी की चिल्लाई, लेकिन बहुत हो गया। मेरी सास मेरे शौहर के रवैये से घबरा गई। फिर इनकी एक ना चली, क्योंकि मेरे देवर भी मेरे शौहर के सपोर्टर थे। मेरी सास को हामी भरनी पड़ी। उसकी शादी को महीना ही हुआ था जब मेरी नंद ने मेरे भाई के सामने कहा वो हामला है। मेरे भाई ने इसके मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इस वक्त मुझे फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद जो बात मेरे भाई ने मुझे बोली, मेरे आसान ख़त्म हो गए। मेरे भाई ने मुझसे कहा ये माँ बनने वाली है, जबकि मैंने अब तक इसे छुआ भी नहीं है। वो मेरी नंद को तलाक देने वाला था। मैंने इसे रोक दिया। अपनी नंद के करीब गई, जो कि गुमसुम बैठी। मैं उसके पास बैठी और उसे बगौर देखा। आंखें अचानक नम होने लगी। जो कभी इसे पलट कर देखना पसंद नहीं करती थी, वो हमारे लिए बदनामी का दाग थी। मुझे इस पर टूट कर तरस आया। वो चेहरे से परसों की मरीसा लग रही थी। मैंने इसे मोहब्बत से पुकारा, पूछा अभी बच्चा कैसे हो सकता है, अभी तो नई नई शादी की शुरुआत ही नहीं हुई। लेकिन वो मेरे कहने पर तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये बच्चा शाहिद का है। मैंने बेख्तियार मुंह पर हाथ रखा। पीछे खड़े मेरे भाई का सब्र टूटने लगा। वो मारने के लिए आगे बढ़ने लगा था। मैंने रोक दिया। चचा शाहिद कौन? वो मुझे आवाज़ों में नहीं लग रही थी वो, लेकिन उसका रवैया बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। पुराने मोहल्ले वाले कश्मकश में दोस्त, उसके अब्बू। वो आसानी से बोल रही थी। इस बार मेरा भाई भी ठटका। मैंने बेयकीनी से इसे देखा। मुझे याद आ गया वो किस चचा शाहिद की बात कर रही है, जो पुराने मोहल्ले में हमारे पड़ोसी थे। लेकिन चचा शाहिद का बच्चा कैसे हो सकता है? फरहीन तुम्हारी शादी तो कैसे से हुई है? मैंने उसके गाल पर हाथ रखे समझाया। वो हाथ झटक दी। बोली मैं बदकार हूँ, मुझे तलाक चाहिए, वरना वो मुझे मार देंगे। वो यहीं इस घर में है, प्लीज़ मुझे तलाक दे दो। अचानक वो रोने लगी। मैं सुन पड़ गई। इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। मेरा भाई बेयकीनी से मुझे देख रहा था। वो जब रोने लगी, मुझे तलाक दे दो वरना वो मार देगा मुझे। फिर सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मैं फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल आई। परेशान तो मेरा भाई भी हो गया, इसीलिए फ़ौरन से मेरे साथ बाहर निकल आया। मैं मुंह पर हाथ रख के रोने लगी। कुछ तो पोशीदा था, कुछ तो छुपाया गया था। मैंने वहीं खड़े खड़े एक फ़ैसला लिया। अपने भाई के साथ फरहीन के पहले वाले ससुराल गई, जहाँ दरवाज़ा इसके पहले शौहर की बीवी ने खोला। इत्तेफाक से वो टीचर घर पर ही मौजूद थी। वो मुझे बखूबी पहचान गया, इसलिए ड्राइंग रूम में बिठाया। मुझे चाय का पूछा। मैंने इनकार कर दिया। जब उन्होंने मेरे आने की वजह दरियाफ्त की, मैंने पूछा मेरी नंद को बर्त का एक इल्ज़ाम लगाकर तलाक क्यों दी, ऐसी कौन सी हरकत की? मेरे सवाल पर वो ठटक गया। मुझसे बोला अपना जुमला दुरुस्त करें, मैंने तलाक दी नहीं, ज़बरदस्ती तलाक ली है। मैं इसकी बात पर चौंक गई। उससे मुकम्मल बात बताने का कहा। वो जैसे जैसे बताते गए मेरा वजूद पत्थर का लगने लगा। वो कह रहा था मेरी नंद कई बातें ही रोने लग जाती, मैं इससे शदीद खौफजदा रहती। उसके अलावा अपने देवर और जेठ से भी डरती। मैं जब उसके करीब जाने लगता तो वो खौफजदा होकर डरने लगती, खुद को नोचने लगती। मैंने इसे कहा उसका हमल 15 माह कैसे? तो इसने बेख्तियार अफसोस भरी गहरी सांस ली और बोला वो तो उसके छूने से पहले ही खुद को हामला कहती थी, जबकि शादी के 6 माह बाद वो हामला हुई थी। लेकिन अपने शादी के दूसरे हफ्ते ही कहना शुरू कर दिया वो हामला है, बदकिरदार है, इसे तलाक दे दो। मैं काफ़ी हद तक इसका मसला समझ चुका था। मुझे मालूम तो पहले ही हो गया था इसके साथ कोई ख़तरनाक हादसा हुआ है। मैं इसकी बात पर कह रहा था, लेकिन जब इसकी हालत पागलों जैसी होने लगी और मैं वक्त देने पर भी वो ठीक ना हुई, मैंने इसके इलाज के लिए किसी अच्छे माहिर नफ्सियात से बात की। इसने लड़की के मुतालिक जानना चाहा, और जब मैं यही बात आपकी सास से पूछी तो उन्होंने ये एक बात कहकर हटा दी, बचपन में सीढ़ी से गिरने की वजह से चोट लगी थी, इसीलिए वो ऐसी है। मैं पहले परेशान हुआ, पर मुझे अंदाज़ा हो गया वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं हो सकेगी। मैंने उसे बहुत संभालने की कोशिश की, क्योंकि मैं उसे मोहब्बत करता था, पर वो ना समझी। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा मुर्दा था। खौफ के जरिए से इसके बच्चे की धड़कन बंद हो चुकी थी। अपने मुर्दा बच्चा जन्म दिया। उसका हमल 9-8 माह का था।
जब वो सबको ये कह रही थी वो माँ बनने वाली है, तो इसकी बात सच रखने, उसको राज पोशीदा रखने पर इनकार ना कर सका। मुझसे तलाक मांगने का वो कह रही थी, अगर मैं तलाक ना दी तो इसे मार देगा। मैं पूछता कौन, वो नाम नहीं बताती। मैंने बहुत कोशिश की, वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगी तो मुझे फ़ौरन तलाक देनी पड़ी। मुझसे हकीकत जानने से बेहतर आप अपनी सास से हकीकत मालूम करें। मुझे यकीन है वो ज़रूर आपके सवालात का जवाब देंगी। मुझे अफसोस फरहीन के लिए, मैं इसके लिए कुछ ना कर सका। वो अफसोस से कहते चुप हो गया। मुझे यकीन तो मुझे तभी होना था जब वो 15 माह की हामला हुई थी, लेकिन इस वक्त मुझे इसके साथ में दिलचस्पी ना थी। मैंने इस टीचर से कहा, अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने हम में से किसी को बताया क्यों नहीं? बड़े पूछने पर मुझे खोया, फिर जो जवाब दिया वो मुझे मज़ीद हैरान कर गया जब उसने कहा, आपकी सास और बड़ी नंद सारी बातों से वाकिफ़ हैं। मेरे लिए बिना सहारे खड़ा रहना मुश्किल कर दिया। बात मज़ीद उलझ गई। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था सिवाय इसके कि फरहीन के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। मैं वहाँ से दूसरे ससुराल गई, मेरा भाई मेरे साथ। अब वो खुद परेशान हो चुका था। दूसरे ससुराल से भी यही मालूम हुआ कि वो लड़के के छूने से पहले ही हामला हो चुकी थी और अपने मुंह से कबूल किया कि वो एक बदकिरदार लड़की है। यहाँ से भी यही मालूम हुआ कि मेरी सास और नंद इस बात से वाकिफ़ हैं। मेरा सर टूटने लगा, सर में दर्द होने लगा। इन सब का जवाब तो मेरी सास ही दे सकती थी, इसीलिए वहाँ से सीधा अपने ससुराल गई। रात का वक्त था, घर पर सभी मौजूद थे। मैंने सबको बाहर बुलाया। मेरी सास समेत सब लाउंज में आए। मैंने बिना किसी मिलावट के बात शुरू की। आखिर तक सारी बात सबके गोश गुजारी। सबकी नज़र मेरी सास की तरफ थी, जिनका चेहरा लट्ठे की मानद सफ़ेद हो चुका था। मेरे शौहर ने गुस्से में मेरी सास से पूछा, एक एक बात बिल्कुल सच बताओ, मैं मज़ीद झूठ की गुंजाइश तो नहीं रहने दूंगा। मैंने अपनी सास को कहा, फरहीन की हालत इतनी ख़राब है, वो मर सकती है। उसकी मौत की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगी। तो उनके रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई। फिर उन्होंने जो बताया वो सुनते ही मेरा शौहर सोफे पर गिर गया। वो सर थामे हिचकियों से रोने लगा। वहाँ मौजूद सभी मेरी सास के मुँह से कैसे इंकशाफ पर रो पड़े। मेरी बड़ी नंद की शादी से यह दर्दनाक कहानी शुरू हुई जब मैं तबीयत ख़राब मसरूफ़ थे। इस वक्त मेरी छोटी नंद फरहीन 14 साल की थी। घर में फरहीन को शॉपिंग पर अकेले छोड़कर जाना मेरी सास को मुनासिब ना लगा, तो वो पड़ोसन के घर छोड़कर चली गई। पड़ोसन बाजार गई तो फरहीन को अपनी बेटी के साथ छोड़कर चली गई। पीछे से इसका शौहर शायद घर आया। इस पर इब्लीस इस कदर गालिब था कि वो अपनी बेटी की हम उम्र फरहीन को अपनी हवस का निशाना बनाते इसकी मासूमियत को रोन दिया। इसके बाद उसको इस हद तक खौफजदा कर दिया कि वो बिन किसी को कुछ ना बता सकी। इस सब का इल्म मेरी सास को जब हुआ, अगले दिन फरहीन को बुखार में झटके लगने लगे। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने मेरी सास के बताया और हवास गुम कर दिया। मेरी सास रोने लगी। डॉक्टर को इज्जत के वास्ते देते हुए रोई, मेरी बेटी की इज्जत ख़राब हो जाएगी। लेकिन इनका ये डर फरहीन के नसीब में इसका जहन भी ख़राब कर गया। घर आकर सास और नंद ने ये बात सबसे छुपा ली। फरहीन की तबीयत को मौसमी बुखार का बहाना बना दिया। वह इनको बहला कर चुप करवा दिया। वो किसी से कुछ ना कहे, ये जाने बगैर इसके जहन पर क्या असर पड़ा। मेरी नंद की शादी के बाद वहाँ से घर छोड़ दिया। किसी से बेहद शेयर तक ना की। घर के किसी भी अफराद से किसी ने फरहीन की साथ में तब्दीली महसूस ना की। मेरी सास जो सब जानती थी इज़्ज़त बचाने, वो जानते बूझते खामोश रही। फरहीन की पहली शादी के वक्त भी उन्होंने बहुत मामला संभालना चाहा, काफ़ी हद तक। ये बात मुझसे छुपा दी। फरहीन ने मुर्दा बच्चा जन्म दिया। उसकी 15 माह की मुद्दत जो सबको करिश्मा न जाने क्या तसव्वुर कर रहे थे, इस हकीकत का लिबाड़ा उड़ा दिया। दूसरी शादी भी नाकामी के बाद उन्होंने फरहीन का इलाज कराने के बजाय इसकी शादी एक छुपे हुए ख्वाजा सराय से करा दी। किस तरह इस ख्वाजा सराय का राज खुलेगा कि वो मर्द नहीं और फरहीन भी जाएगी। लेकिन वहाँ से नाकामी के बाद उन्होंने फरहीन की शादी का इरादा तर्क कर दिया। वो मेरे भाई से भी इसीलिए फरहीन की शादी नहीं करवाना चाहते कि सारी हकीकत सामने ना आ जाए। अपनी छोटी इज्जत को बचाने के बाद वो फरहीन को मुकम्मल बर्बाद कर चुकी थी और जिंदा इंसान भी बाइज्जत पुरस्कून जिंदगी गुजार रहा था, जबकि फरहीन सेनी मरीज बन चुकी थी। इससे हर जगह वही दरिंदा नजर आता, कभी दरिंदगी करते, कभी मारते, कभी धमकाते। मेरी सास को ये सब बताते हार्ट अटैक आया।
वो सिर की हालत में थी। मेरी एक नंद मिलने आई तो मेरे शौहर देवर ने इसे घर से निकाल दिया, जिसने खुद के नाम नहाद इज्जत का भरम रखने के लिए छोटी बहन खो दी। इस वाक़े के 3 महीने हो चुके थे। मेरी सास की तबीयत अब बहुत अजीब थी। घर में सब इनसे खफा हैं। मेरी बड़ी नंद से कोई नहीं मिलता। फ़हीम की हकीकत जानने के बाद मेरे भाई को फ़हीम को दिल जान से कबूल कर लिया। अब इसका इलाज जारी है, जबकि इज्जत की परवाह किए बगैर मेरे शौहर ने शाहिद पर केस किया, जो हमारी तरफ से बहुत मजबूत है, और फैसला न आने तक जज शाहिद को हिरासत में रखा गया, क्योंकि इनके खिलाफ गवाही देने वाली इनकी ही बेटी थी, जो खुद इस वाक़े की गवाह थी, लेकिन खौफ से अब तक खामोश थी। लेकिन शादी के बाद ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए अपने बाप के खिलाफ बयान दिया। फ़हीम का इलाज शुरू हो गया। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई वो जल्द ठीक हो जाएंगे।